یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 28 مئی 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: قدیم و جدید جادوگری، عرفیت، تنویم اور علم نومیات سے انکار۔ سنہری متن۔ امثال: کیا بدی کے موجد گمراہ نہیں ہوتے، پر شفقت اور سچائی نیکی کے موجد کے لیے ہیں۔ جوابی مطالعہ۔ زبور۔ اے بچو، آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا۔ وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے؟ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ بدی کو چھوڑ اور نیکی کر، صلح کا طالب ہو اور اسی کی پیروی کر۔ خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا۔ درسی واز بائبل میں سے۔ زبور۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں۔ بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیادیں ہیں۔ اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی۔ خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے۔ اے خداوند سے محبت رکھنے والو، بدی سے نفرت کرو۔ وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریر کے ہاتھوں سے چھڑاتا ہے۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ تواریخ۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلے کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشفت ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی، اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے۔ اور یہوشفت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا اور کہا، اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، کیا تو ہی آسمان میں خدا نہیں؟ اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں؟ زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ہی نے اس سرزمین کے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہیم کی نسل کو ہمیشہ کے لیے نہیں دیا؟ سو اب دیکھ، امون اور مواب اور کوہ شعیر کے لوگ جن پر تو نے بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل کر آ رہے تھے حملہ کرنے نہ دیا، بلکہ وہ ان کی طرف سے مڑ گئے اور ان کو ہلاک نہ کیا۔ دیکھ ہم کو کیسا بدلہ دیتے ہیں کہ ہم تیری میراث سے، جس کا تو نے ہم کو مالک بنایا ہے، نکالنے کو آ رہے ہیں۔ اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ تب یحزیل بن زکریا پر خداوند کی روح نازل ہوئی، اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں، اور اے بادشاہ یہوشفت، تم سب سنو۔ خداوند تم کو فرماتا ہے
کہ تم इस बड़े अम्बुआ की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। कल तुम उनका सामना करने को जाना। तुमको इस जंग में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांध कर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की निजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हरासा ना हो, उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। और वो सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए, और उनके चलते वक्त यूसुफत ने खड़े होकर कहा, ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। उसके नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब किए जाओगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तक़द्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहे शहीद के बाशिंदों पर, जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे, कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। ज़बूर। जो हक़ ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। वो तुझे अपने परों में छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा। पर तू, ए खुदावंद, मेरी पनाह है। तूने हक़ ताला को अपना मस्कन बना लिया है। तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। जैसे कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, हैवानी मकनातीसियत या इल्म नौमियात गलती या फ़ानी अक्ल के लिए ख़ास इस्तिलाह है। ये एक झूठा अक़ीदा है कि अक्ल मादे में है और कि ये अच्छाई और बुराई दोनों है, कि बदी अच्छाई जितनी हकीकी और ज़्यादा ताकतवर है। इस अक़ीदे में सच्चाई की एक भी खसूसियत नहीं है। ये या तो बेखबर है या हासद है। नौमियात की हासद शक्ल अखलाकी गिरावट में बुनियाद रखती है। हैवानी मकनातीसियत की कोई साइंसी बुनियाद नहीं है, क्योंकि जो कुछ हकीकी, हमआहंग और अब्दी है, उस सब पर खुदा हुक्मरानी करता है और उसकी ताकत हैवानी है न इंसानी। साइंस में हैवानी मकनातीसियत, तनवीम या इल्म नौमियात महज एक नफ़ी है, जो ना ज़हानत ताकत रखती है और ना हकीकत, और एक लिहाज से ये नाम नेहाद फ़ानी अक़ल का एक गैर हकीकी नज़रिया है। मगर यहाँ रूह की एक हकीकी दिलकशी है। सुई की नोक से कतर तक खुदा यानी इलाही अक़ल की सबको समेटने वाली ताकत या दिलकशी की निशानदेही करती है। सियारों का इंसान पर इसकी निस्बत ज़्यादा इख्तियार नहीं है जितना उनके खालिक पर है, क्योंकि खुदा कायनात पर हुक्मरानी करता है, मगर इंसान खुदा की कुदरत की अक्कासी करते हुए पूरी ज़मीन और उसके तमाम लश्करों पर हाकमियत रखता है। क्रिश्चियन साइंस ज़हनी अमल के पेंदे तक जाती है और असबाते अदल इलाही को ज़ाहिर करती है, जो पूरे इलाही अमल की दुरुस्तगी की तरफ इशारा करती है, जैसे कि इलाही अक़ल का अजर और नतीजा मुखालिफ नाम नेहाद अमल की गलती होता है। बदी, सहर परस्ती, जादूगरी, तनवीम, हैवानी मकनातीसियत, इल्म नौमियात।
साइंस की दवा इलाही अक्ल है और बेईमानी, हवस परस्ती, झूठ, इंतकाम, बदनीयती, हैवानी तबलीगात हैं, और ये किसी सूरत वो जहनी काबिलियतें नहीं हैं जो बीमार को शिफा देती हैं। क्रिश्चियन साइंस रूह के इदराक के वसीला मादी अकायद को नेस्त करती है। इस अमल की कामलियत सेहत का तयन करती है। इंसानी अक्ल की गलत ताकतें खा किसी भी नाम या मकर तले जिसमें वो काम करती हैं, सिर्फ बदी का काम कर सकती हैं, क्योंकि रूह और मादा, अच्छाई और बदी, रोशनी और तारीकी बाहम मिल नहीं सकते। बदी मनफी है क्योंकि ये सच्चाई की गैर मौजूदगी है। ये कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कुछ होने की गैर मौजूदगी है। ये गैर हकीकी है क्योंकि ये खुदा, कादिर मुतलिक और हर जा मौजूद की पहली से क़यासशुदा गैर मौजूदगी है। हर बशर को ये सीखना चाहिए कि बदी में ताकत है, ना हकीकत है। बदी खुद अदाई है। ये कहती है, मैं हकीकी हस्ती हूँ, नेकी को मगलूब करती हूँ। इस झूठ को बदी के तमाम तर दिखावों से महरूम करना चाहिए। बदी में सिर्फ एक खुद को तबाह करने की ताकत है। ये अच्छाई का ज़रा सा तिनका भी कभी तबाह नहीं कर सकती। अच्छाई को तबाह करने की बदी की हर कोशिश नाकाम होती है, और ये सिर्फ आर्जी तौर पर बदी करने वाले को सजा देने में मदद देती है। यसाया में हम पढ़ते हैं, मैं ही रोशनी का मौजूद और तारीकी का खालिक हूँ, मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। लेकिन नबी ने जब इसे मंजर आम पर लाते हुए और इसकी खासियत की जानब इसे कम करते हुए बदी के इंतहाई अदम पर ईमान को भड़काते हुए इलाही कानून का हवाला दिया है। नदी को साफ करने के लिए गदली दरियाई तह को हिलाना पड़ेगा। इखलाकी कीमियाई मादे के इस्तेमाल में जब बदी फरेब नजरी की अलामत को भड़का दिया जाता है, हम अपनी लाइल्मी में ये सोच सकते हैं कि खुदा ने बदी को जन्म दिया है, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि खुदा की शरीयत नाम नेहाद गुनाह और इसके असरात को अयां करती है, महज इसलिए कि सच्चाई बदी के तमाम तर हवास को और गुनाह करने के लिए इसकी ताकत को फना कर सके। खुदा या अच्छाई ने इंसान को कभी गुनाह करने के काबिल पैदा नहीं किया। ये अच्छाई के मुखालिफ है, यानी बदी है, जो इंसान को बदकारी करने के काबिल बनाती दिखाई देती है। लिहाजा बदी भरम के सिवा कुछ नहीं, और इसकी हकीकी बुनियादें बिल्कुल नहीं हैं। बदी एक झूठा अकीदा है, खुदा इसका तख्लीक़कार नहीं है। बदी का फर्जी वारिस एक झूठ है। बाइबल वाज़ह करती है, सब चीज़ें उस इलाही कलाम के वसीला पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा ना हुई। ये इलाही साइंस की अब्दी हकीकत है। अगर गुनाह, बीमारी और मौत को अदम के तौर पर समझा जाए तो वो गायब हो जाएंगे। जैसा कि बुखारात सूरज के सामने पिघल जाते हैं, इसी तरह बदी अच्छाई की हकीकत के सामने गायब हो जाएगी। फ़ानी अक्ल मादे में एहसास की बुनियादों पर अमल करते हुए हैवानी मकनातीसियत है, मगर ये नाम नेहाद अक्ल जिसमें से सारी बदी निकलती है, खुद की मुखालफत करती है, और इसे बिलाखिर अब्दी सच्चाई या क्रिश्चियन साइंस में बयान करदा इलाही अक्ल को तस्लीम करना पड़ता है। क्रिश्चियन साइंस में हमारे इदराक के तनासुब में हमें विरासत के अक़ीदे, मादे पर अक्ल के अक़ीदे या हैवानी मकनातीसियत के अक़ीदे से आज़ाद किया जाता है, और फ़ानी हस्ती के मेयार से मुतल्लिक़ हमारे रूहानी फ़हम के तनासुब में हम गुनाह को उसके तसव्वुराती ताकत से गैर मुसल्ला करते हैं। इंसानी हमदर्दियों में अच्छाई को बदी पर और जानवर पर रूहानी को गलबा पाना चाहिए, वगरना खुशी कभी फ़तहमंद नहीं होगी। इस आसमानी हालत का हसूल हमारी नस्ल को तरक्की देगा, जुर्म को तलफ करेगा और उमंग को बुलंद मकासद अनायत करेगा। गुनाह की हर वादी सरबुलंद की जानी चाहिए और खुदगर्जी का हर पहाड़ नीचा करना चाहिए, ताकि साइंस में हमारे खुदा की राह हमवार की जा सके। हर दौर और हर हाल में बदी पर अच्छाई के साथ काबू पाएं। खुद को जाने तो खुदा बदी पर फतहमंदी के लिए हिकमत और मौका फराहम करेगा। मोहब्बत के लिबास में मलबूस हों तो इंसानी नफरत आप तक पहुंच नहीं सकती। बुलंद इंसानियत का सीमेंट तमाम मफादात को एक अलूहियत में
मुत्तहिद रखेगा। अब ये मादी दुनिया भी मुतसादम क़ुव्वतों का अखाड़ा बन रही है। एक तरफ तो यहाँ मुखालफत और मायूसी होगी, जबकि दूसरी तरफ यहाँ साइंस और अमन होगा। मादी अकायद की मनसूखी गुनाह, बीमारी और मौत के कहत और वबा, ख्वाहिश और अफसोस के साथ देखी जा सकेगी, जो अपने अदम के ज़ाहिर होने तक नए अदवार को कबूल करते हैं। ये परेशानियाँ गलती के खात्मे तक जारी रहेंगी, जब पूरी मुखालफत रूहानी सच्चाई से हड़प कर ली जाएगी। जैसे ही ये तकमील करीबतर होती जाएगी, वो जिसने अपने चाल चलन को इलाही साइंस के मुताबिक ढाल लिया है, वो आखिर तक मुकाबला करेगा। जब मादी इल्म ख़त्म होता और रूहानी समझ बढ़ती है, तो मादी की बजाय ज़हनी तौर पर हकीकी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इस आखिरी तसादुम के दौरान बदकार जहन ऐसे वसाइल तलाश करने की कोशिश में होंगे जिनसे वो मज़ीद बदी मुकम्मल कर सकें, मगर वो जो क्रिश्चियन साइंस का इदराक रखते हैं, वो जुर्म में रुकावटें लाएंगे, वो गलती के खात्मे में मदद करेंगे, वो अमन व अमान को बरकरार रखेंगे और वो हतमी कामलियत के यकीनी होने का खुशी के साथ इंतज़ार करेंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।